أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. My dear fellows, my dear colleagues and my friends and students and those who want to attend these serial of lectures on hematology, this clinical hematology which we are discussing. And very important aspects of hematology had been discussed by me previously. Now there are few topics remaining which can be discussed, which should be discussed. And one is that is approach to the bleeding disorders, dominant bleeding disorder, because there is a balance between the bleeding and the clotting mechanism in the body. There are some factors which are enhancing bleeding. There are some factors which are enhancing clotting. So the balance in the body is between the bleeding versus clotting. So the body remains in the milieu interior or internal environment. This is the concept. If the bleeding factors are more than the clotting factor, then bleeding occurs. And the clotting factors are dominant, then bleeding. It means the clotting will occur in the body in different parts of the body. The first part is where this is the bleeding disorders. It means that the clotting mechanism are at stake, and the bleeding factors operative in the body, they are enhancing, they are dominating. Now this is, first of all, you should understand the normal mechanism of the clotting. So you can understand bleeding then. First of all, a cut is there. Usually we do it in the normal pursuits. If there is bleeding, how the body responds against this bleeding, whether it is inside the body or it is outside the body. The first step is the vessel wall contraction. You know there is tunica media, tunica intima and tunica adventitia. Media has smooth muscles which are innervated by the sympathetic system. And by the sympathetic system, if they are enhancing, there will be vasoconstriction. And if they are inhibiting, there is vasodilation. So if there is a cut and a bleeding occurs, first step is the vessel wall contraction. All the diseases which will affect this first step will cause bleeding. So bleeding occurs in this way. This is first way of the mechanism. The second step is the activation of the platelets. Now platelets should be activated because a part of the cellular system in the blood, and the components we have got the RBC and the WBC and the platelets. As the platelets are concerned, the platelets should be activated first. Being activated, there is a mechanism actually is going on for this activation. If they are activated, they will reach to the site of the bleeding. Now this is the mechanism which is described in this picture, in this slide. Although it is difficult to understand and it will take much time, but you see the activation of the platelet occurs because of this mechanism, which is prostaglandins and the hydroxytryptamines and guanosine phosphates and the thromboxane and collagen relative with the collagenase or collagen activators, and this is here it is fibrinogen, which is converted into B3 alpha 2B2 activated form from here, and in this fashion the other factors that are operating, the coagulation factors, inflammatory mediators, if they are acting on the platelets, now the platelets are activated and they will now go
to the site of the bleeding. Now here is the interferon factor is prostaglandin 2Y12. Look the mechanism of action of the acetylsalicylic acid. It is the thromboxane which is not activated. And in this fashion, if it is not activated, then GMP will not be activated, not be converted into GMP, and GMP is the activator of the platelets. If you will inhibit at this stage, it means that the aspirin can cut down the platelet activation. You know the formation of the thrombus in the vessel, a clot in the vessel. The platelet plays an important role, and that is the way we give the aspirin to our patients as a primary prevention or the secondary prevention. Very, very rapidly acting drug and very, very potent drug. Another drug which we use, or another group, where the cycles, the ADP, will be converted into the prostaglandins, the prostaglandin 2Y12. So it is inhibited by fashion in this, the ticlopidine, which is another platelet inhibitor, or clopidogrel, which we are using today, and progesterol is also available. Now they will convert in the liver into the active metabolite first, and they will inhibit the formation of P2Y12, and its activated enzyme or system is AZD6140 Challenger. Now here it is blocked. It means that P2Y12 will not be activated. If it will not be activated, the platelet will not activate. So there are two types of the drugs have been invented. One is acting through thromboxane pathway, and second one is acting through the P2Y12 pathway from ADP. Now this part which is seen here, there are two types of the platelet inhibitors. The activation is inhibited. If the activation is inhibited, they cannot go out from the path, and they cannot form for the formation of the or for the action of the platelet on the bleeding site. Try to understand the action of the acetylsalicylic acid, and this difference is there. It can be asked in the examination, higher examinations, how the difference is. What is the difference between the action of this acetylsalicylic acid and ticlopidine, clopidogrel, and progesterol? Now these are the drugs which we are using nowadays. Remember. So these are the drugs which are widely used in the primary and the secondary prevention for the atherosclerosis or in the cardiology. But the mechanism of action, if we ask to the students, they cannot answer. They said platelet inhibitors. No platelet inhibitors. What are the mode of action? They inactivate the platelet. This is the second part of the formation of a clot. The third one is this, that the platelet will be activated first, and then they will aggravate to the bleeding site, aggregation. So aggregation occurs under the influence of certain important proteins. They will aggregate this. The first one is thus the contraction of the vessel wall. The second step is the platelet activation, and third is the platelet aggregation. They should aggregate at this point. The fourth step is adhesion. They should adhere. They should stuck together to form something which can block this bleeding or puncture site. So this is a platelet adhesion. You see, there are certain diseases which
affects this adhesion, which can affect the platelet adhesion. So there are disorders where the platelet adhesions are affected. There are certain disorders which are against the platelet activation. I have already described some examples of it. And there are certain disorders which are acting on the vessel wall, that is platelet smooth muscle, and they cannot contract the vessel wall. What are the factors which can possibility of the affection on this adhesion? As far as adhesions are concerned, only adhesion. There are certain diseases where there are inherited diseases of adhesion. One is called the Bernard-Soller syndrome, and one form is the von Willebrand disease. Now, adhesive disorders are the Bernard-Soller syndrome and the von Willebrand disease. Acquired factors are also operating, and they inhibit the platelet adhesion. Like, for example, uremia, there will be less adhesion, and in acquired, there is one form of the von Willebrand disease in which there is an acquired form. This is called the acquired Willebrand disease. It is not inherited. This is actually the functional disorders of the platelets, it is the qualitative disorders, not the quantitative disorder of the platelets. If there is a quantitative disorder, means the quantity of the platelets is less. And the quantity of the platelets less means that there are chances of bleeding. That is another point. I am talking about the functional problems. Whether it is the contraction of the vessel wall which is affected. Number two, whether the activation is inhibited, which I have just told you previously. And thirdly, where the third word is their adhesions are inhibited by inherited diseases like Bernard-Soller syndrome or von Willebrand disease, or acquired diseases like uremia and some of the autoimmune diseases like acquired Willebrand disease, where antiplatelets antibodies will not function and they will inhibit the platelet adhesion. Now, fourth, if they are adhesion means if they are sticking together and a clumping occurs. If the clumping occurs, they will fill this clot, that is called platelet clot. Now, here the bleeding will stop. Now, this is called bleeding time. Bleeding time means that starting from the first one, the qualitative disorders, other than quantitative disorders. I am talking about qualitative disorders. So, whether they are disorders of the vessel wall contraction, or two, or they are factors which are operating against the activation of the platelets. Number three, there are factors which are against the adhesion of the platelets. And number four, there are factors which are inhibiting the platelet clot to form a clump at the site of the bleeding. These are the diseases which can cause the increase in the bleeding time. So, the bleeding time, it means that if you calculate the bleeding time, it is 3 to 5 minutes. Under 3 minutes, the bleeding will stop because of the formation of the platelet clot. Here you should stop. The bleeding time should be calculated by yourself. Just puncture the part by a sterile syringe and take the time to stop the bleeding by tissue paper. Mark 1, 2, 3, 4 like this. After every 30 seconds, you should put the sterile tissue paper at that site
if it is after, after 2.5 minutes or 3 minutes, there will be dry, if it is dry tissue paper, it means that this is the bleeding time. The bleeding time will not be calculated in the lab, it will be at the bedside. इस इन्वेस्टिगेशन को करते ही कोई नहीं है. जब आप इसको करेंगे ही नहीं तो फिर आप ये मुझे बताएं कि आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर को जो अभी जो बताए जा रहे हैं, यानी अभी तक प्लेटलेट क्लॉट तक, तो उससे फिर अगला वाला आप नहीं निकाल सकते. पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर एक्चुअली ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनहांसिंग कर रहा है, या क्लॉटिंग डिसइनहिबिशन है. तो उसके लिए आपको जो ब्लीडिंग टाइम मालूम करना होगा. तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है, अगर जब पंक्चर करते हैं आपको और वो बहता रहता है, खून बहता रहता है, बहता रहता है, 5 मिनट से भी ऊपर हो जाते हैं, वो बहता रहता है, या वो उसके बाद जो है ना रुक जाता है लेकिन फिर बहना शुरू कर देता है. 2 सूरतें हो सकती है ना. यानी क्लॉट बना और इसके बाद ये इतना अच्छा क्लॉट नहीं था, ये इसको अभी रहना है यहाँ पे. जब तक कि आपके पास एक्टिवेशन ना हो जाए, वो पाथवे जो है आपको याद कराई जाती है, गार्टन में भी है और दूसरी बुक्स में भी है, जो कास्केड रिएक्शन कहलाता है. और वहाँ पे ये काम शुरू होता है कास्केड का, कि वो इसको परमानेंटली हील करे, उसके लिए फिर आगे चले. अब इसके बाद जो वो भी कुछ होगा, वो जो टाइम आएगा इसके बाद, वो क्लॉटिंग एक्चुअली टाइम बताएगा आपको. तो उसके बाद अब आपको फिब्रिन क्लॉट को बनाना है. अगर परमानेंट सोल्यूशन देना है तो क्लॉट बनाना पड़ेगा. रेड सेल्स एग्रीगेट होंगे, प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर चुके आप, और इस तरह से क्लॉट, ये देख रहे हैं ये स्ट्रैंड्स हैं प्लेटलेट्स के दरमियान, ये भरे हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल टाइट कर दिया इसको. तो फॉर्मेशन ऑफ द फिब्रिन क्लॉट बनना चाहिए, तब जाके जो है ना ब्लीडिंग परमानेंटली रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी. तो क्लॉटिंग कास्केड क्या था? इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12 एक्टिवेट करता है, 11 को, फिर 9 को, फिर 8 को, और फिर 10th को. एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होती है वो फैक्टर 7 से शुरू होती है, और वो जो है वो फैक्टर 5 को ये पहले एक्टिवेट होती है, फिर इसको एक्टिवेट करती है. अब ये इधर से जो पाथवे आई थी 10 प्लस फैक्टर 5, ये दोनों जमा होते हैं और ये प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं. यानी थ्रोम्बिन से पहले प्रोथ्रोम्बिन बनता है, एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बिन. ये थ्रोम्बिन है जिसकी बात की है मैंने. ये थ्रोम्बिन का भी क्लॉट होता है. ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. जब तक कि आप फाइब्रोनेजिन इस कन्वर्ट होता है, ये फाइब्रोनेजिन में, यानी ये प्रोफिब्रिन है, और उसके बाद फिब्रिन बनता है एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर 13 स्टेबलाइज करने के लिए. अगर ये नहीं हो फैक्टर ये वाला 13 तो स्टेबलाइजेशन नहीं होगा. फिब्रिन तो बन जाएगा लेकिन वो बनेगा नहीं, रहेगा कुछ देर के बाद वो टूट जाएगा फिर, और फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी. तो फैक्टर 13 अगर डेफिशिएंट है किसी में, तो पहले जो है ना वो जाहिर बात है वो एक्चुअली उसने ब्लड रोक दिया था, लेकिन कुछ देर के बाद फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई. फैक्टर 13 जो था उसने स्टेबलाइज नहीं किया. अगर ये चीज़ आपको आती है तो फिर तो आप जाहिर बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, समझ सकते हैं बात को, कि यहाँ तक आपने प्लेटलेट क्लॉट बनाया था, अब आप फिब्रिन क्लॉट बनाने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए. तो इंट्रिंसिक पाथवे जो है ना वो इस तरह से मूव करती है कि उसके अंदर जो है ना वो फैक्टर्स ऑपरेट करता है. इंट्रिंसिकली देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो एक्टिवेट करते हैं पाथवे को, वो बहुत सारे हैं वो. और इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो है वो जब बाहर से हमला होता है, जी आप कोई शिकाफ देते हैं या कट करते हैं या पंचर करते हैं, तो टिश्यू फैक्टर ऑपरेट करता है, वो इसको इन्हांस करता है फैक्टर 7 को, और वो इन्हांस करता है 5 को. 10 उसके साथ कंबाइन होना चाहिए, दोनों को मिल के फिर प्रोथ्रोम्बिन बनाना चाहिए. अब इसमें से एक भी चीज़ कम हो गई तो ये प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा. इनमें से एक भी चीज़ कम हो गई. एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए जो स्टडी की जाती है वो पीटी स्टडी की जाती है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR निकाला जाता है उसमें. पर
एक्सटेंसिक में। और इंट्रिंसिक पाथवे को अगर स्टडी करना हो आपको तो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको निकालना पड़ता है, APTT, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो ये APTT जो है जब निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस पाथवे को स्टडी कर रहे हैं। और अगर आप PTRR को निकाल लें तो इस पाथवे को स्टडी कर रहे हैं। ये पाथवे जो है विटामिन K डिपेंडेंट है। लिवर के अंदर ये सारे के सारे जितने भी आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये मिलेंगे, ये वो ही बनाता है। और एक्सटेंसिक पाथवे के अंदर जो फैक्टर है वो भी लिवर बनाता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है विटामिन K पे। तो विटामिन K जो है अगर डेफिशिएंट होगा तो फैक्टर 7 ऑपरेटिव नहीं होगा, फैक्टर 5 ऑपरेटिव नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा। तो ये प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन सकता। और ये मौजूद है लेकिन ये मौजूद नहीं है, इसलिए PTRR रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंसिक पाथवे को। हम इधर इस तरफ देखें अगर तो ये आगे नहीं जा सकता मैकेनिज्म अगर एक भी चीज़ इसमें ना हो, ना इन फैक्टर डिफिशिएंट हो जाए या ये जो भी हो जाए। ये आपके सामने देखिए 8 ये एक्टिवेट नहीं होगा तो 10 भी नहीं होगा। जब 10 नहीं होगा ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो फिर ये दूसरी पाथवे जब लेते हैं तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम आपको निकालना होता है, वो आपको लैब निकाल के देती है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम आपको खुद निकालना है, लेकिन PTINR को और APTT को आपको लैब निकाल के देती है। और खुद निकालना चाहे आप क्लॉटिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आपने एक जगह कट हुआ है और आपने उसको देखा है कि ब्लीडिंग हो रही है, आप उसका क्लॉटिंग टाइम निकालना चाहते हैं। तो क्लॉटिंग टाइम का मतलब ये होता है ना आपको ये पता है कि इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुए, ना आपको ये पता है एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुए, लेकिन आपको ये पता है कि क्लॉट बन गया, उसका टोटल टाइम कितना है। तो वो टाइम जो होता है क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। उसमें क्या करते हैं कि सिरिंज के अंदर ब्लड ले लेते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है मूव करते रहते हैं, इंक्यूबेटर में जैसे मूव करते हैं ना सिरिंज को, और हर 30 सेकंड के बाद उसको देखते रहते हैं। जैसे ही उसके अंदर जो है ना स्ट्रैंड सिप्रीन के बनने शुरू हो जाते हैं वहाँ हम रोक देते हैं टाइम कैलकुलेटर को अपने। तो नॉर्मली जो होता है वो क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो तकरीबन 8 से 12 मिनट होता है, उसमें जाके ये फिब्रिन क्लॉट बनता है। कम से कम 10 तो होना चाहिए। ये अब नॉर्मलिटी जो है ना क्लॉटिंग टाइम वाली, याद रखिएगा ये एनिमेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग टाइम कोई भी नहीं निकालता। वो PTINR निकालते रहते हैं, वो APTT निकालते रहेंगे, लेकिन क्लॉटिंग टाइम नहीं निकालेंगे। वो बेड साइड स्टडी होती है कि आप सिरिंज में निकालें और ख़ुद कैलकुलेट करें। अगर क्लॉटिंग टाइम जो है 20 मिनट किसी का एनिमेशन हो गया, इसके स्नेक बाइट हो गई, स्पाइडर बाइट हो गई या दूसरी कोई बाइट हुई है और जिसने ये फैक्टर रिलीज़ किए हैं और जिसने पूरी पाथवे को तबाह कर दिया, ये भी एक्टिवेट होगी, ये भी एक्टिवेट होगी। अब क्लॉटिंग कास्केड इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, यानी एक्टिवेट किया है ना आपने इसको, तो उसके बाद जो है ना क्या होगा, ये इनकी एक्टिवेशन से ये कास्केड जो है ना एक्टिवेट होने के बाद फिर फिब्रिन क्लॉट बनाना शुरू कर देगा। इसीलिए जो होता है कि स्नेक बाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल होता है शुरू में, और उसके बाद जो है ना क्लॉटिंग उसकी चूँकि लिमिट हो जाती है, ये फैक्टर को लिमिट करती है, जो उसके पॉइजन्स हैं वो इनको इनहिबिट करते हैं, चूँकि ये कास्केड को तोड़ देते हैं, इसलिए क्लॉटिंग ये फिब्रिन क्लॉट नहीं बनता। प्लेटलेट क्लॉट बन जाता है, फिब्रिन क्लॉट नहीं बनता। इसलिए क्या होता है कि ब्लीडिंग वो जारी रहती है, रुकती ही नहीं। 20 मिनट लग जाते हैं, 25 मिनट लग जाते हैं। इससे हम मॉनिटर करते हैं फिर पेशेंट को। और इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो है ना वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेटलेट क्लॉट आपने बना लिया था, अब आपको फिब्रिन क्लॉट बनाना है। उसके बनाने के लिए ये पाथवे याद रखनी चाहिए आपको। तो आसान सी बात है, ये एक्सटेंसिक पाथवे है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है। अगर इस चार्ट को गौर से देखें 10-12 मरतबा गौर कर लें तो आपको डिसऑर्डर समझ में आ जाएंगे। जब वो क्लॉट बन गया, बात ख़त्म हो गई, रात गई बात गई, अब वो वहाँ पे वो चिपका हुआ रहेगा। अभी कल ही पूछे थे एक साहब
कि भाई वो जो है वो उनको वुंड हुआ स्कैल्प के ऊपर, तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं, उसके ऊपर जो है ना वो जो है ना ऊपर खुड़न जिसे कहते हैं वो आई हुई है, उसको काफ़ी बड़ा एरिया है वो। मैंने कहा उसको आप वॉश करते ना आहिस्ता 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 करके नॉर्मल सिलाइन से वो निकल जाएगा वो, क्योंकि असल में बात ये कि यहाँ पे कट हुआ था। अब इसको तोड़ने के लिए नेचुरल जो सब्सटेंस है वो फिब्रिनोलाइसिस कहलाते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस या फिब्रिनोलाइसिस कहलाते हैं। ये इसको रिमूव कर देते हैं, जो कि फिब्रिन जिसने बंद किया था, अब तो चूँकि हीलिंग हो गई है टोटल, तो अब इसका मकसद जो है ना वो फिब्रिन क्लॉट को डिज़ोल्व करना है। अगर आप फिब्रिनोलाइसिस की जो मैकेनिज्म है उसमें जाएंगे, प्रोफिब्रिनोलिसिन होता है, फिब्रिनोलिसिन होता है, फिर वो एक्टिवेट होकर जो है ना उसको रिमूव कर देता है, प्लाज्मिन भी कहते हैं उसको। अगर ये फैक्टर ऑपरेट हो जाए, तेज एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर भी जो है ना वो क्या होगा कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्लॉटिंग टेंडेंसी से। अगर फिब्रिनोलाइसिस को आप बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा ब्लड जो है वो ब्लीडिंग करने लगेगा, ब्लड ब्लीड करेगा ज़्यादा। अगर ये ऑपरेट नहीं हुआ, इसके फैक्टर इन्हांस हो गए, इसके फैक्टर अगर डिसएनेबल हो गए तो कोई मसला नहीं है, चलो वो समझ में आती है बात। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर इंट्रिंसिकली जो है ना ये प्रॉब्लम है वेसल वॉल के अंदर, तो यहाँ एक क्लॉट जो होगा वो बनेगा और डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, और डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा तो ज़ाहिर है या इस्कीमिया प्रोड्यूस करेगा हार्ट के अंदर या ब्रेन के अंदर, जो भी है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म। इसीलिए आप फिब्रिनोलाइटिक एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जब आप करते हैं ना इस्तेमाल एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, तो फर्स्ट थेरेपी जो होती है, यानी हम जब इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट एड के बाद प्राइमरी मैनेजमेंट में हम कर लेते हैं उसको, और उसके बाद जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो हम थ्रोम्बोलाइसिस इस्तेमाल करते हैं या फिब्रिनोलाइसिस इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस है, TPA है और टेरिप्रेज वगैरह, ये इस्तेमाल करते हैं। डिज़ोल्व कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिज़ोल्व करें। लेकिन डिज़ोल्व आप कराएंगे तो ब्लीडिंग क्या होगी, उसके अंदर ये बढ़ा देगी, उसकी ब्लीडिंग फैक्टर को इन्हांस कर देगी। वो इन्हांस होगा इंटरनली, एक्सटर्नली तो नहीं होगा। तो वो जो ब्लीडिंग जो है ये होगा कि ब्लड जो है ना ये आराम से जो है ना ये जो क्लॉट बना था उसको डिज़ोल्व कर देगा और फ्लो को बढ़ा देगा। हमें उस क्लॉट को ख़त्म करना है जो इनसाइड बन गया है, ट्यूनिका इंटीमा में बना है, उसको डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं। तो इस बात को जो है ना ज़रा इम्पोर्टेंस दीजिएगा प्लीज़। देखिए एक केस को डिस्कस करते हैं पहले। तो ब्लडिंग, एक हो गया ब्लीडिंग टाइम, एक हो गया क्लॉटिंग टाइम, एक हो गया PT, एक हो गया PTNR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, और एक हो गया एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जिसे आप कहते हैं। वो ये चार जो होते हैं ये स्टडी होती है, कोगुलेशन स्टडी कहते हैं इसको। अगर ये चारों की जाए, करता नहीं है कोई भी, PTNR करते हैं लोग और APTT करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप चारों को मिला लेंगे तो फिर ये सारी डिजीज समझ में आएंगी, वरना आपकी समझ में ही नहीं आएगी। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि वॉन विलेन डिजीज़ के अंदर कौन सा टेस्ट है जो इम्पोर्टेंट है? इनमें से चार मैंने आपको अभी भी बताए, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो करना चाहिए था? तो सही जवाब जो है वो ब्लीडिंग टाइम है। क्लॉटिंग टाइम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। बर्नौली सिंड्रोम है, ये नाम मैंने लिया था, उसके ऊपर भी यही मसला है। उसके अंदर भी जो है ना वो ब्लीडिंग जो है ना टाइम जो है ना वो प्रॉब्लम करता है। और इसी तरीके से एग्रीगेशन जब होती है उनकी, तो उनकी इनहेरिटेड डिसऑर्डर होते हैं, जो आपको नाम याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उनका नाम है ग्लांस मैंस थ्रोम्बोस्थीनिया, मिसाल के तौर पे। तो ये जो है ना ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है एग्रीगेशन का, प्लेटेड एग्रीगेशन का। तो ये भी ब्लीडिंग टाइम को बढ़ाएगा, लेकिन क्लॉटिंग टाइम से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो PT APTT का क्या सवाल पैदा होता है? वो तो नॉर्मल आएंगी, तो आप तो डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे फिर? भाई केस है जो ब्लीडिंग जिसके अंदर हो रही है, अब उसको आप मालूम करना चाहते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है तो कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है।
तो ये चीज़ें, बुनियादी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो फिर तो आप समझ जाएंगे करना क्या है। और आप नहीं समझेंगे तो हैकी पैकी करेंगे फिर। और हैकी पैकी जो है ना वो मेडिसिन में नहीं होती कभी भी इस्तेमाल। आप जो है ना बिल्कुल जो अनजस्टिफिकेबल जो है ना वो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करा के और बिलिंग को जो है वो 30,000 40,000 तक ले जाते हैं लोग, क्योंकि वो हवा में उड़ रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता वो कर क्या रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सिनेरियो देखिए, 63-year-old स्मोकर प्रेजेंटेड विद एफर्ट एंड टॉलरेंस। उसके अंदर जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो रही है ग्रेजुअल इन 6 months, फॉर द लास्ट 6 months। And he noted pedal edema recently। उसने एडिमा को देखा जो कि पाँव पे था। ऑन टेम्परेचर एग्जामिनेशन में टेम्परेचर नॉर्मल है, पल्स इसकी ज़्यादा है, टैकीकार्डिया 110 है, हाई वॉल्यूम है, रेगुलर कोलैप्सिंग इन नेचर है, बाउंडिंग पल्स है, यानी अनेमिक पेशेंट में होती है। बीपी 100/75 है, जुगुलर वेनस प्रेशर इसका रेज है, एनीमिया इसका पॉजिटिव है, और पीडल एंड सेक्युलर एडिमा पॉजिटिव है। अच्छा खासा है। अब ये आप जब ग्रेड करेंगे ब्रेथलेसनेस को तो उसका ग्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको, कौन सी ग्रेड में आता है ये ब्रेथलेसनेस, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, जो आपको पढ़ाया जाता है क्लिनिक्स में। असल में वही है कि ये अनीमिया पॉजिटिव था, ये अहम बात है। और शॉर्ट मिड डायस्टोलिक मरमर था, ये फंक्शनल मरमर है S1 एरिया पे, एओर्टिक एरिया 1 में। तो ये जो है ना A1 एरिया में जो है ना आपको शॉर्ट मिड डायस्टोलिक मरमर मिला A1 एरिया में, और ये प्रेजेंटेशन थी उसकी जो आपको ने देखी थी। ये पेशेंट जो है हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर का, और हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर की एक कॉज जो है ना वो सीवियर एनीमिया है। लिहाजा जब इनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो CBC में हीमोग्लोबिन 6.9 है सिर्फ, और RBC 2.9 है जो बहुत कम है। और इसी तरह से हेमोग्लोबिन रेट बहुत कम हो गया, 30% से भी लेस हो रहा है। यहाँ आके मालूम नहीं चला कि एनीमिक है पेशेंट, और अच्छा खासा एनीमिक है, मॉडरेट एनीमिया है ये, टू सीवियर की तरफ जा रहा है ये पता चल गया। अब अगला जो स्टेप था, जैसे आपको पहले बताया था, MCV को देखते हैं। इसका MCV 65 है, नॉर्मल इसमें जो लिखा है इनके डैब में वो 77-95 है, तो ये गिर गया अच्छा खासा। तो ये क्या हो गया कि माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया। उसके बाद आपने MCH देखा 24 है, जो कम हो गया। MCH है वो काफ़ी गिर गया, तो हाइपोक्रोमिया भी है, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो गया ये। और फिर TLC जो है ना इसका 5600 नॉर्मल है, प्लेटलेट जो है वो 55,000 है। ये रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस है, इसलिए कि ये ब्लड आपने नहीं बना पा रहा, RBC सीरीज को नहीं बना पा रहा है वो सही तरह, तो फिर क्या होगा कि एक्टिवेट हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो है याद रखिए एक्यूट फेज रिएक्टेंट भी हैं, या तो अंदर बॉडी के अंदर कोई इस किस्म का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जो इन्हांस कर रहा है, या ये कि रिएक्टिवली प्लेटलेट ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारा अपना ख्याल है कि 1 ग्राम अगर कम हो जाता है तो उसके अंदर तकरीबन 50,000 to 100,000 प्लेटलेट बढ़ जाते हैं रिएक्टिविटी। ये हमारी अपनी रिसर्च है जो हमने की है, जारी क्योंकि बुक में शाये नहीं हुई तो इस पर मैं बात नहीं कर सकता। जब वो शाये हो जाएगी, जब होता ना कि बाद में मालूम चला कि भाई एक्सेप्ट कर लोगों ने कर लिया, हाँ भाई ये बात सही है। अगर ये बहुत हाई काउंट है, ये यानी वो काउंट है जिसके अंदर थ्रोम्बोसाइथीमिया डायग्नोज हो जाता है। अगर आपको इसके लिए शर्त क्या थी एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस की, कि आपको क्या होता है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होती है, कि दूसरे फैक्टर ऑपरेट ना करें तो फिर ये डायग्नोसिस बनेगी। सीरम फेरेटिन इसका करा के देख लीजिए। अब मजे है कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है अगर किसी को, तो या तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये पॉसिबल है, नंबर 1। नंबर 2 या थैलेसीमिया का कोई ट्रेट है, और नंबर 3 जो है ना वो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। तो उससे पहले कि आप आगे जाएं और ये देखें कि ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है या ये थैलेसीमिया माइनर है, बीटा थैलेसीमिया माइनर है, आप फेरेटिन लेवल को करा लीजिए। इसमें सिर्फ 5 आए हैं, मेल है
इसमें कम से कम 10-12 होने चाहिए थे, तो स्टोरेज भी कम हो गया इसका। इससे ये पता चला कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, यानी आयरन जो है वो लॉस हो रहा है या वो ले नहीं रहा। लेकिन स्मोकर है, स्मोकिंग से ठीक है इनहिबिट होता है, मान लेता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा गिर जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ही इज लूजिंग आयरन फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द बॉडी। आयरन जो लॉस होता है वो आबीसी में होता है, इसका मतलब आबीसी लॉस हो रहे हैं। ये देखिए आप इसका अकाउंट को देखिए, इसका मतलब कहीं ब्लीडिंग हो रही है जो आपको नज़र नहीं आ रही, यही चांसेस है ना ज़्यादा होने की। जब पैरेफरल ब्लड प्रिंट देखी तो एनासाइटोसिस था उसको और कोलोसाइटोसिस था, ये साइजेज जो है डिफरेंस थे और शेप भी डिफरेंस थे। इसका मतलब है कि ये बोन मैरो हरी हो रही है और एक्स्ट्रा मैटेरियल हेमेटोपोइसिस होने की कोशिश हो रही है ताकि हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर सके। तो जल्दबाजी के अंदर जो है ना सेल जो है उनके छोटे बड़े हो गए और शेप में भी डिफरेंस हो गए। इसको बाइकॉन्केलर डिस्क होना चाहिए था, तो ये इलेप्टिकल या शिस्टोसाइट टाइप के हो गए या स्टोमेटोसाइट टाइप के हो गए, शेप मुख्तलिफ टाइप के आपको नजर आएंगे। ये बोन मैरो हरी को बता रहे हैं कि हो रही है बॉडी में, बिकॉज टू रिप्लेस द हीमोग्लोबिन टू नॉर्मल। क्वेश्चन इसमें ये किया गया था कि व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एनीमिया की डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगी, जाहिर है जितनी एनीमिया होते हैं जो आपको बताए थे उन सारे के सारे आप जो है ना लिखेंगे और उसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि आपने ये टेस्ट करा के देख लिया कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, उसकी 3 कॉजेज होती हैं, उनमें से एक कॉज जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, दूसरी सिडोब्लास्टिक एनीमिया है और तीसरी थैलेसीमिया माइनर है। उन्हीं से जो है ना चांसेस बढ़ गए इस बात के कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है इन मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो उसको कंफर्म करने के लिए आप पूरी आयरन स्टडी करा के देखिए, पहली बात ये कंफर्म हो जाएगा। फिर और ज़्यादा कंफर्म करना है तो आप सीरम आयरन देख लें, फिर आप जो है ना परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ फेरेटिन देख लें और आप कंफर्म करते हैं इस बात। फिर आप चाहें तो और अगर बहुत ही अच्छे आप करने वाले हैं तो फिर आयरन को बोन मैरो करके देख लें, उसके अंदर के आयरन का कंटेंट लिवर में या उसके अंदर कितना है, जो कि ज़ाहिर है कि वैसे प्रोसीजर है वो करते नहीं हैं ये, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो उसको तो हम नहीं करते, लेकिन दूसरी चीज़ों को हम करते हैं। दूसरा इसका ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट ये कि इसकी कॉज क्या है। भाई आप ये तो बोल रहे हैं कि आयरन डेफिशिएंसी में है, या तो आदमी आयरन नहीं ले रहा, रिक्वायरमेंट उसकी 1.5, अब वो तो इतना कम रिक्वायरमेंट है आयरन की कि वो जो आदमी खाना पीना खाने वाला बंदा होता है उसके अंदर ये पूरी हो जाती है। अगर ये इसमें पूरी हो जाती है तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। एक बात तो ये है कि वो आयरन ले नहीं रहा, दूसरी बात ये वो आयरन तो ले रहा है लेकिन आयरन जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। देखिए आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए शुरू होता है प्रोसेस स्टमक से, स्टमक के अंदर जो फेरिक स्टेट से फेरस स्टेट में लाना होता है, उसको चाहिए होता है पीछे से थोड़ा लीस्ट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड है। इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक जो उसका जो इन्वायरमेंट है स्टमक का वो कन्वर्ट हो जाता है फेरस में, फिर फेरस की फॉर्म में सॉल्ट बाहर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, जिग्रेनम में, वहाँ वो एब्जॉर्ब होता है। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो है प्रोटीन उसको लेके चलता है, ट्रांस जो होता है जिसको फेरेटिन कहते हैं आप या एपोफेरेटिन कहते हैं, वो ऊपर ले जाता है, वो ले जाने के बाद लिवर में पहुंचा देता है। वहाँ पे अब ये जो है ये मैक्रोमोलिकुलर स्टेट में आ जाता है और स्टोर हो जाता है। कुछ तो फॉर्मेशन में काम में आ जाता है और जो नहीं आता है वो स्टोर हो जाता है हिमोसिट्रीन मिसाल के तौर पे, फेरेटिन या हिमोसिट्रीन उस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लिवर में भी हो जाता है और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में भी हो जाता है। या तो यहाँ पे कोई मसला हो गया। और तीसरी कंडीशन वो है जिनके अंदर वो लॉस हो रहा है, आयरन को लॉस कर रहा है, मतलब आरबीसी को लॉस कर रहा है, यानी ऐसी ब्लीडिंग है जो हिडन ब्लीडिंग कहलाती है, लेटेंट ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, जो आप नहीं पकड़ सकते।
उसके लिए इन्वेस्टिगेशन मांगता है ये फिर कि आप ये बता लगाएं कि भाई कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये हिडन ब्लीडिंग होती है, कहाँ से हो सकती है हिडन ब्लीडिंग। जीआई ट्रैक्ट में हो सकती है, अपर जीआई ट्रैक्ट में हो सकती है, लोअर जीआई ट्रैक्ट में हो सकती है। फिर ये कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है हिडन, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकती है, ये ब्लीडिंग हो सकती है गायनेकोलॉजिकल जो सब्जेक्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उसके अंदर से हो सकती है, फीमेल की बात हो रही है, वहाँ भी हो सकती है ब्लीडिंग। यही जगह है ना, और तो कोई जगह नहीं बनी ना। ये ब्लीडिंग हो रही है और ये मुसलसल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अब इसको जो है ना, जो स्टडी किया गया है मोस्ट ऑफ द कंट्री, ज़्यादा देर लॉट ऑफ कॉजेज जो हिडन कॉजेज हैं जो आपको नज़र नहीं आते, और उसके बाद ये मालूम चलाते हैं वो, इसका प्रोटोकॉल है, बाकायदा एक प्रोटोकॉल है कि ये मालूम चला है कि हिडन ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। तो अगर वो एब्जॉर्प्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, उसकी अंदर कंजम्पशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इनटेक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंजम्पशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसकी एब्जॉर्प्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उसको ट्रांसफ़र जो हुआ है वो फ्रॉम पोर्टल वेन के अंदर जो एपोफेरेटिन डे के ऊपर चढ़ा था, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो सही वो अपना काम कर रहा है। तो फिर अब जो रह गई चीज़ वो ये हुआ कि लॉस कर रहे हैं फिर नहीं, अच्छा खासी ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। तो फिर अब आपको लिटेंट ब्लीडिंग तलाश करनी होगी, और उसके लिए आपको जीआई ट्रैक्ट को देखना होगा, अपर जी एंडोस्कोपी, लोअर जी एंडोस्कोपी करनी होगी, इस तरह यूरिनरी ट्रैक्ट को यूरिन देख के अगर वहाँ मिल गया एविडेंस तो फिर आपको फुल स्टडी करनी होगी कि कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है ब्लीडिंग। इस तरह गाय के अंदर भी जो है ना आपको पूरा ट्रैक्ट देखना होगा, वजाना, सर्वक्स, यूट्रस पूरा देखना होगा, और वहाँ से ही पकड़ना होगा ये कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अपर जी एंडोस्कोपी, लोअर जी एंडोस्कोपी, यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिनरी ट्रैक्ट एग्जामिनेशन, और इसके साथ यूरोजेनाइटल एग्जामिनेशन, अगर आप ये कर लेते हो तो आप पता लगा लेंगे एक्चुअली कि ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। एंड हाउ विल यू मैनेज, जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे हो रही है तो आप उसको एग्जैक्टली इसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो ये आयरन को रिप्लेस कर दें, ठीक है। अगर गिर गया है वो 10 ग्राम तक गिरा है तो ओरल दे दें, 10 ग्राम से 7 ग्राम के दरमियान गिरा है या 6 ग्राम और 6 और 10 के दरमियान है तो आप इसको आप दे सकते हैं, पैरेंटल दे दें आयरन, और उससे भी नीचे गिर रहा है तो फिर आपको जो है ना मजबूरन आपको आरबीसी कॉन्सेंट्रेट देना पड़ेंगे, यानी पैक्सल देने पड़ेंगे, वरना ये फेलियर जो है ना ये हाई आउटपुट के लिए कार्डियक फेलियर में जाएगा, पेशेंट अगर सस्टेन रहेगा तो डेथ हो जाएगी उसकी। इसलिए आपको इसको हैंडल करना पड़ता है इस तरह से। अब इसको इतना आसान लोग ले लेते हैं बात को, ये कोई बहुत ही नहीं सिंपल बात है, ये सिंपल बात नहीं है। इसकी पहले की स्लाइडों को अच्छी तरीके से ये जो मैंने अभी अभी दिखाई है आप ज़रा से याद करने की कोशिश करें, और ये भी देखें कि मैंने आपको इसके क्या बताया है कि आपको ब्लीडिंग टाइम आना चाहिए, क्लॉटिंग टाइम आना चाहिए, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट या एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट या प्रोथ्रोम्बिन टाइम आयनर, ये वो टेस्ट हैं जो आप करते हैं वो आपको आने चाहिए। 4 इन्वेस्टिगेशन तो ये होगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है डोमिनेंट या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है डोमिनेंट। अभी आपने ये तो तय हो गया कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तय हो गया ना, कोई गड़बड़ है कहीं पर जिससे लॉस हो रहा है। इसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन किस तरह कराते हैं वो भी मैंने अभी डिस्कस की, अभी अभी आपको पूरा समझाया है कि मैंने एक्सक्लूड किए डायग्नोसिस को, और यहाँ पहुँच गया हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और यहाँ पे भी पहुँच गया हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो हो सकता है वो 3 तरीके से पॉसिबल है, या तो इनटेक पुअर है बहुत ज़्यादा, नंबर 2 या वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने से रोक रही हैं, या ये है कि उसको ल्यूमिनल एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या ये उसके अंदर जो है ना एपोफेरेटिन यानी जो कैरियर सब्सटेंस है वो उसको पिक नहीं कर पा रहा और लिवर के अंदर नहीं ले जा रहा, और वहाँ पे फेरेटिन की स्टेट या हेमोसिटिन नहीं बना पा रहा, स्टोरेज नहीं बना पा रहा, जिससे जो अहम
कंपोनेंट है किस चीज़ का, ABC का। ये डिस्कशन मैंने किया है आपके सामने अभी। अब इसको एवोल्यूशन करना है, इसी मरीज को ले लेते हैं फर्ज करें और इसको एवोलेट करते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री है जो मैंने दी है, फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने किया है, लैब एवोल्यूशन अभी आपको बता दी है, जो एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया है अभी के आयरन को। क्योंकि आपने अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि आयरन जो है लॉस हो रहा है, आयरन लॉस हो रहा है कि ABC लॉस हो रहा है, यहाँ तक का डिस्कशन किया है। इसको पार्ट 1 आप करार दीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसको अगर हम एक जल्दी आप कोई करेगा तो फिर उसके तो समझ में नहीं आएगा। इसको पार्ट 2 किया जाएगा उसका, और फिर पार्ट 3 किया जाएगा, तब जाके ये समझ में आएगा, अगर कोई समझना चाहता है तो। क्योंकि हमारा जो एम है वो ये नहीं, ना तो पैसे कमाना है, ना शोहरत पाना है, कुछ भी नहीं पाना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें तो सिर्फ लोगों को समझाना है, कोई लालच के बगैर, कि भाई आप सही लाइन के ऊपर जो है ना उसको पकड़ें और सही लाइन में मैनेजमेंट करें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात स्ट्रेसिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वी विल सी द पार्ट 2 नेक्स्ट इंशाअल्लाह।